کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے زمی اور میرے ساتھ ہیں شہزاد چودھری۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، آج اس ویڈیو پہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے، وہ ہے فضا خان ایک اینکر پرسن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سجاد طارق صاحب آئل پہ جو ہے وہ ایک بحث چڑھی ہوئی ہے پاکستانی میڈیا پہ۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیٹس سٹارٹ۔ ہندوؤں کو لاگے بسایا جا رہا ہے، یہ رپورٹنگ دنیا کو پتہ ہے، لیکن دنیا کو ظاہر ہے کہ انڈیا کی ضرورت ہے، یہ ان کا پراکسی ہے پاکستان کے خلاف، سی پیک کے لیے اور چائنا کے لیے، پھر ساؤتھ چائنا سی میں آپ کو پتہ ہے کوارڈ گروپ بھی بن گئے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے سر جھکا لیا ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے اپنی عوام کو ذبح کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ بات۔ ایسے حالات میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، دے فال پرے ٹو آل ایکسٹرنل فورسز، جس میں را بھی ہے، آئی ایس ایس بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، اور اسکوالرز میں موجود ہیں۔ افغانستان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہاتھ سے نکلتی ہے تو دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ پاکستان جو ہے اس کے لیے اس بحران کا مطلب کیا ہوگا، اس آنے والے خطرے کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہم پر کس طرح پڑنے جا رہا ہے۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب ہونے کیا جا رہا ہے، اس سب کے اندر ناظرین کرام اب جو ہے کھیل بڑا ہی خطرناک مرحلہ جو ہے اس کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ تو دوسری جانب اب رائٹرز ہی اسے کور کر رہا ہے کہ جاپان انڈیا ورکنگ آن آئل سٹاک ریلیز ود یو ایس، ٹائمنگ انکلیئر، کہ ہمارے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا ہے۔ ہیلو فرینڈز، اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستانی میڈیا کے اندر فضا خان اور ساجد طرح دکھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کو برباد تو کر ہی دیا، ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی برے دن آ چکے ہیں۔ پہلے تو پاکستان نے اپنی پالیٹکس کے تھرو افغانستان کو اندھکار میں دھکیل دیا، اب رو رہا ہے کہ وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسے پتہ چل جاتا ہے پاکستانیوں کی حالت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھارت ہندوؤں کو بسا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا ڈیموگرافک بیلنس چینج ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا بوکھلایا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آئل وار چل رہی ہے پورے ورلڈ کے اندر اس سمے، اسے دیکھتے پاکستانی میڈیا کہہ رہے ہیں امریکہ، رشیا اور انڈیا تو بچ جائیں گے، بڑے ملک ہے، اصلی دیوالا تو پاکستان کا نکلے گا اگر او آئی سی نے آئل کے پرائس کم نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اس سمے ٹینشن کا ماحول ہے، اور انہیں کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا آگے، کیونکہ تیل کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو پاکستان جو پہلے سے ہی مرا ہوا ہے اور بھی اس کی حالت خراب ہونے جا رہے ہیں۔ آئیے فرینڈس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ہندوؤں کو لاگے بسایا جا رہا ہے، یہ رپورٹنگ دنیا کو پتہ ہے، لیکن دنیا کو ظاہر ہے کہ انڈیا کی ضرورت ہے، یہ ان کا پراکسی ہے پاکستان کے خلاف، سی پیک کے لیے اور چائنا کے لیے، پھر ساؤتھ چائنا سی میں آپ کو پتہ ہے کوارڈ گروپ بھی بن گئے، جس وجہ سے انڈیا نے، امریکن نے اور باقی ملکوں نے اپنی آنکھیں دوسری طرف پھیری ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ہیومن رائٹ چیمپئن کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ پاکستان میں ذرا آپ دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے افغانستان میں، جو بات کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، وہاں لوگ مر رہے ہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے، وہاں پر اپنے جھنڈے کو لے کے چلے۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بات نہیں کرتے ہیں، اور صرف جب انڈیا کی کوئی بات ہو تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئی تھنک لمحہ فکریہ ہے یونائٹڈ نیشن کے لیے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے لیے، یو ایس واچ ڈاگ کے لیے بہت بڑا انتہام ہے، اور وہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے لیے ان کو ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بیر صاحب، یہ افغانستان کی بات کرنا چاہوں گی میں، تو یہ ریڈ کراس کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی معاشی پابندیاں افغانستان کو بحران میں مبتلا کر رہی ہیں، اور افغانستان کے 6 روزہ دورے کے بعد جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ میں ان حالات سے بہت بے چین ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ہڈیوں کی طرح دبلے بچوں کی تصاویر دیکھی، ہڈیوں کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک یہ تو ایک ظلم کی انتہا ہے، اور یہ امریکنز، نیٹو، یورپ جان کے کر رہا ہے۔ جتنے عوام بھوکے ہوں گے، جتنی حکومت کمزور ہوگی، اتنے ہی لوگ القاعدہ کے آگے بک جائیں گے، اسی طرح وہ یہ آئی ایس ایس خراسان گروپ کے آگے بک جائیں گے، اسی طرح وہاں پہ جو اسکالرز ہیں وہ ان کی پے رول پہ چلے جائیں گے، انہوں نے بھی بیچاروں نے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے ہیں، ان کو گزارا کرنا ہے۔ یہ ڈیزائن ہے۔ افغانستان میں اگر ہم چاہتے ہوتے تو سب سے پہلے افغان حکومت کو سٹیبل کرتے، فائنینشلی سٹرونگ کرتے، ان کا ریٹ قائم ہوتی کابل کے اندر، اور پھر وہ القاعدہ کو بھی سارٹ آؤٹ کرتے، کیونکہ دے آر ویل ٹرینڈ یہ افغان طالبان، لائک بھی آئی ایس ایس گروپ کو کرتے، اسکالرس کو کرتے، اور افغانستان میں امن ہوتا، اور امن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ترقی کی راہیں کھل جاتی، نہ وہاں پر ایجوکیشن، نہ وہاں پر ہیلتھ، نہ انڈسٹری، نہ کوئی جاب اپرچونیٹیز۔ تو ایسے حالات میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، دے فال پرے ٹو آل ایکسٹرنل فورسز، جس میں را بھی ہے، آئی ایس ایس بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، اور اسکالرز میں موجود ہیں، بہت ملکوں کے لوگ بیٹھے ہیں جو پہلے سے موجود تھے۔ یہ اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنا ہی ان کو درد ہے
आई थिंक सबसे पहले अमेरिका को $9 बिलियन रिलीज करें ताकि वो अवाम को तनख्वाहें दे सकें, बिल्कुल औरतों को जॉब दे सकें, और फिर वहाँ पर वो इंडस्ट्री हॉल्स काम जो करने वाले हैं करें। अवाम का पेट भरेगा तो फिर हुकूमत जो स्ट्रांग होके अपनी रिट कायम करेगी और ऐसे स्ट्रांग एलिमेंट को खत्म करेगी। बहुत शुक्रिया बिगर साजिद साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करना चाहूँगी। ट्राइका मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है इस वक्त के जो अफगानिस्तान के हवाले से हो रही है। आपकी क्या राय है, मुस्तकबिल में इस मीटिंग का क्या इम्पैक्ट होगा, जो अफगानिस्तान का फ्यूचर है वो क्या नज़र आ रहा है आपको? अफगानिस्तान में इस वक्त वही हालात हैं कि उनकी इकानमी मुसलसल गिर रही है और उनका जो स्टेट बैंक उनका अपना है वो भी बिल्कुल नाफाल हो चुका है। उसका कोई मुसलसल फ्री फॉल पे चल रहा है। दुनिया हेल्प उनकी नहीं कर रही है। दुनिया को खुद कोविड के इश्यूज बन चुके हैं यहाँ, और उनका $9 बिलियन जो होल्ड किया हुआ है अमेरिका ने उनके रिजर्व को, उसके बारे में मुसलसल प्रेशर वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ट्राइका प्लस में क्या हुआ है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, वो अपने 20 लोगों को लेकर उसमें शामिल हुए। वहां पे अमेरिका के नुमाइंदे भी बैठे, वहां पे चाइना के नुमाइंदे भी बैठे, रशियन नुमाइंदे भी बैठे। इसलिए उसको ट्राइका प्लस किया जाता है क्योंकि उसमें 4 लोग थे, 4 कंट्रीज ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान जो कि ओनली इस्लामिक एटॉमिक पावर है, उसके हालात हैं वो दुनिया पे क्या उसका इम्पैक्ट है। अफगानिस्तान में अगर खुदा न खास्ता कोई चीज हाथ से निकलती है तो दुनिया पे उसके क्या असरात होंगे, लेकिन प्रेशर मेंटेन करने की जरूरत है। इट वाज अ पॉजिटिव स्टेप, अच्छा स्टेप था, लेकिन इट हैज टू बी प्रेशर हैज टू बी डेवलप्ड और मेंटेन्ड। नाज़रीन इकराम, एक जानिब पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतों को पर लगे हुए हैं और तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तेल का तनाज़ा और एक बहुत बड़ा तेल का बहरान जो है उसकी बुनियाद डाली जा चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, ये वो ममालिक है नाज़रीन इकराम जिनकी मईशत का पूरा दारोमदार, जिनकी तमाम तर चीज़ें जो हैं, उनका घमंड, उनका गुरूर, उनका ज़रिया मुआश सब कुछ तेल से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सऊदी अरब को घुटनों पर लाने के लिए क्या कुछ होने वाला है और इसके लिए बदतरीन दुश्मन भी एक होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ अमेरिका और चाइना क्या करने वाले हैं, और ये ऑयल वॉर जो है ये क्या रुख इख्तियार करेगी और ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा। और जारी बात है जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और पाकिस्तान जो है, उसके लिए इस बहरान का मतलब क्या होगा, आने वाले खतरे का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम पर किस तरह पड़ने जा रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब होने क्या जा रहा है, इस सब के अंदर नाज़रीन करम अब जो है खेल बड़ा ही खतरनाक मरहला जो है उसके अंदर दाखिल होने वाला है। अच्छा, तो दूसरी जानिब अब रॉयटर्स ही इसे कवर कर रहा है कि जापान इंडिया वर्किंग और ऑयल स्टॉक रिलीज विद यूएस, टाइमिंग अनक्लियर, कि हमारे पास ऑयल का जो जखीरा है जापान और इंडिया, ये आपको पता है ये क्वाड में भी हिस्सा है, जापान भी और इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो जाहिर बात है ये एक वेस्टर्न ब्लॉक है, तो इन्होंने माननी है अमेरिका की बात, तो ये अमेरिका के पीछे लग के अब ऑयल का स्टॉक जो है उसे रिलीज करने पर इवन भारत भी आमादा हो चुका है। और इस सब के अंदर इट विल हर्ट पुअर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान की तरह के दीगर ममालिक को बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली नाज़रीन इकराम आपको पता है कि हम ऑलरेडी 1 मिलियन बैरल जो है वो शॉर्ट जा रहे हैं ऑयल सप्लाई पर। ये अभी भी जो स्ट्रिंग्स हैं वो तो ओपेक के हाथ में है, तो इसकी वजह से अब आने वाले दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बिलीव मी, हम ऑयल को इतना इंपॉर्टेंट समझे ना समझें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर धारा जो है वो बदलने जा रहा है। चलिए जी, तो वीडियो यहीं तक थी जो हमने देखा और आपने भी देखा। तो ऑयल की कीमतों के बारे में जो है वो हम भी परेशान हैं, काफ़ी हद तक परेशान हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो बढ़ रहा है, ज़्यादा ही जा रहा है। उसके अलावा जो है ऑयल की कीमत का बढ़ जाना ना सिर्फ हमारी जो है ऑयल वाली चीज़ें जितनी भी लाइक बाइक्स, गाड़ियाँ, उसके अलावा जनरेटर्स वगैरह हैं, जितना भी ये है इसका यूज़ काफ़ी हद तक पाकिस्तान में ज़्यादा है और लोग जो मजबूर हैं महंगे दामों जो है वो पेट्रोल बाय करने के। इसके अलावा जो है मैंने देखा हमारे बिजली के बिल, उन पे काफ़ी सारा इम्पेक्ट पड़ रहा है इसके बढ़ जाने से। एक्स्ट्रा जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से एक एक्स्ट्रा टैक्स लग के आ रहा है पाकिस्तान में, तो इस लिए
ये मैं यही कहूँगा कि ऑयल की प्राइस का जो है वो तो हमें भी नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं हैं कि वो अपने आप को स्टैंड कर सके। तो खैर ये तो हमारे जो है निचले लेवल की बातें हैं जो हमने समझी, जो हमने देखी। उसके अलावा सर आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप। जी मैं तो यही कहूँगा जमी चौधरी साहब के सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जी सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर आपको घबराहट फील हो तो 25 रुपये का अंडा है, एग 20 रुपये का बॉयल वाला भी मिल जाता है, आप एक वो ख़रीदें और खा लें। फिर आपने अगर आपको फिर घबराहट फील हो तो आप नहा लें, तो आप एक बार नहा लें। और फिर भी अगर आपकी घबराहट कम ना हो रही हो तो फिर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब में एक शोरूम है जहाँ इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है। वो तो आपने ख़रीदी हुई है पहले ही, वो तो आपके पास पहले ही है। तो वो इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदें, उसे घर में लाकर चार्ज करें और बग़ैर पेट्रोल फ्री उसे चलाएं आप। और साउंडलेस है, उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको घबराहट फील हो रही हो तो एक शादी और कर लीजिए, क्योंकि शादी करने से घबराहटें कम हो जाती हैं। तो जिमी चौधरी साहब, पाकिस्तान के जो ऑयल और दुनिया के ऑयल की बातें हैं, इनको जितना ज़्यादा आप सोचते जाएंगे ये उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर हायल होती जाएंगी, उतना ज़्यादा आपको जीने में दुश्वारियाँ और मुश्किलें आती रहेंगी। इसलिए ऑयल की जो कीमतें हैं, जो ऑयल की बातें हैं, जो पेट्रोल की हैं, डीज़ल की हैं और भी जितने ऑयल हैं, इन सब की बातें हम ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि जितना हम इसको डिस्कस करते हैं उतना ही ज़्यादा हम अपनी सेहत का ख़राब और बर्बाद कर रहे हैं। यकीनन अगर ऑयल देखें, हर चीज़ का तल्लुक़ पेट्रोल से, ऑयल से जुड़ा हुआ है, तेल से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ का, चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना, जैसे आपने बात की बाइक की कीमत का बढ़ जाना, कार की कीमत का बढ़ जाना, इसी तरह जितनी भी ये ऑटो चीज़ें हैं पेट्रोल पे चलती हैं, जनरेटर और जितनी भी मशीनरी हैं, ये सारी चीज़ों का बढ़ जाना। और फिर वो चीज़ें जो मशीनरी पेट्रोल पे चलती हैं, फिर उनसे और प्रोडक्ट बनती हैं, उन सब का ये सारा दारो मदार सारे का सारा पेट्रोल और ऑयल पर ही है। लेकिन अब ऑयल का बढ़ जाना गरीब आवाम का नुकसान है। तो गरीब आवाम कल भी नुकसान में थी, धोखे में थी, और आज भी गरीब आवाम धोखे में और नुकसान में है। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी गायबाना क़ुव्वत को भेजे या ऐसी गायबाना कोई मदद भेज दे जो दुनिया के हालात को बेहतर कर दे। वरना जिस तरह देखा जाता है कि जैसे पानी में कमी आती जा रही है, पानी की कमी, और साथ साथ ये जो ऑयल निकलता है ज़मीन से ये भी तो कम होता जाएगा। अल्लाह ना करे एक दिन ऐसा आए कि हमारी सारी चीज़ें, हम सारा दारोमदार सारा दारोमदार हमारा ऑयल पे है। अब ऑयल कम होना शुरू हो गया तो कितने नुकसान और कितना मुश्किल में आ जाएगी सारी दुनिया। तो ये सिर्फ़ एक पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, अरेबिया और इसके अलावा आप जितने भी अफ़गानिस्तान या जितने भी नेम ले रहे हैं वीडियो के अंदर, ये सारे के सारे नहीं, बल्कि इससे पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसमें एक ख़तरनाक मुश्किल और बड़ी परेशानी में आ जाएगा इस कमी की वजह से। तो लिहाजा इसका कोई सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन अभी तक कोई भी नहीं है। मसनूई तरीके से ऑयल को बनाना या मसनूई तरीके से किसी चीज़ को ऐसे वैसे करना, ये सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, जो कि किसी के पास अभी तक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ममालिक के पास ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक हैं, कम यूज़ कर रहे हैं ऑयल को, बहुत कम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत कम उन्हें ज़रूरत पड़ती है तेल के साथ। वरना पाकिस्तान में तो यहाँ हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो वो तेल का जो पेट्रोल के अखराजात हैं वो अलग से मांगता है जी, 200 रुपया अलग से दे दें जी, वो क्या करना है, पेट्रोल डलवाना है। हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं भेज सकते बगैर पेट्रोल के। यहाँ तक कि जब कभी पेट्रोल की कीमतों में कमी या इजाफा या टाइम कुछ इस तरह का हो जाता है तो वो जो गाड़ियों वाले जो बच्चों को स्कूल लेके जा रहे होते हैं वो
उस दिन छुट्टी का अनाउंसमेंट कर जाते हैं जी आज नहीं जा सकते, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिस वजह से आज स्कूल में बच्चों को भी अब माफिया छुट्टी। पहले से एक्टिव हो हाँ जाता है, जी, तो पेट्रोल ये रोक लिया सारा जाता है। सारा तालीम का निज़ाम, खाने पीने का निज़ाम, सारे का सारा ये पेट्रोल पे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हमने घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम घबराए तो हमारी परेशानी कम नहीं होंगी घबराने से। ये सही कहा उन्होंने, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और अपना ख्याल भी रखना है। तो जमी चौधरी साहब, आप इस वीडियो को, आज की वीडियो को वाइंड अप करें। इसी के साथ जी हमें दीजिए इजाजत, अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।